یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں جہاں بڑے بڑے مبارک مہینے آتے ہیں، اس میں یہ مہینہ بھی ایک بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس لیے برکت والا مہینہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے۔ تو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک، کیونکہ ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر برکتیں نظر آئی، ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر روزی نظر آئی، ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر انسانیت نظر آئی، ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر قرآن نظر آیا، ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت نظر آئی۔ اور جب ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے بھی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ تا قیامت جاری ہو گیا۔ تو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف 3 چیزوں پر بات کروں گا، جس میں پہلی چیز یہی ہے کہ ہمارے نبی آئے۔ اب ہمارے نبی کے آنے کے بارے میں الگ الگ مختلف اقوال، مختلف تاریخیں لکھی گئی ہے۔ پیر کے دن پیدا ہوئے، بہرحال ہمارے نبی آئے یا تو 9 ربیع الاول یا پھر 12 ربیع الاول۔ علماء نے الگ الگ باتیں لکھی ہے۔ ایک لمبی موضوع ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں تو بیان کروں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا کیا واقعات پیش آئے، ان واقعات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے اور ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب اور ہمارے نبی کے جو ابا ہیں حضرت عبداللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ تو ہمارے نبی دنیا میں جب تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں۔ دادا عبد المطلب کعبے کے طواف کر رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں بھی کعبہ تھا۔ کعبہ کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بھی کعبہ تھا، اور دادا عبد المطلب کعبے کے ذمہ دار تھے، متولی تھے، روزانہ اپنے عادت کے مطابق طواف کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے طواف کا انداز الگ تھا۔ یہ تو ہمارے نبی آئے اور ہمیں بتایا کہ طواف کا طریقہ کیا ہے، طواف کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ اپنے اعتبار سے طواف کر رہے ہیں، تو دادا عبد المطلب بھی طواف کر رہے ہیں۔ ابھی 1-2 چکر لگائے تھے کہ اچانک دادا عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں کہ جس کعبے کے طواف کر رہے ہیں وہ کعبہ تھوڑا جھکا ہوا ہے، تو اب کوئی بھی ہوگا گھبرا جائے گا۔ تو دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، فَفَزِّعُوا كَثِيرًا۔ خود دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ آج تک طواف کرتا آیا، کبھی ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا کہ کعبہ جھک رہا ہو۔ تو دادا عبد المطلب وہاں سے پیچھے ہٹے، کوئی بھی ہوگا وہاں سے پیچھے ہٹے گا۔ جب پیچھے ہٹے تو پیچھے مقام ابراہیم تھا۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں پر شیشے کے اندر 2 پاؤں کے نشان دیکھے ہوں گے۔ اس کو قرآن نے بتایا، وَفِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ، اس جگہ کا نام ہے مقام ابراہیم۔ تو دادا عبد المطلب جب مقام ابراہیم کے پاس آیا تو دیکھتا ہے کہ مقام ابراہیم بھی جھکا ہوا ہے۔ تو دادا عبد المطلب اور زیادہ پریشان ہوا، حیران ہوا کہ سامنے دیکھو تو کعبہ جھک رہا ہے، اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھو تو مقام ابراہیم جھک رہا ہے۔ تو اس وقت لوگ کیا کریں؟ وہاں سے جائے گا، رکے گا؟ مان لو مسجد کی دیوار یوں جھکنا شروع ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً مسجد کے باہر چلے جائیں گے۔ تو وہاں پر کوئی مکان نہیں بلکہ اللہ کا گھر کعبہ جھک رہا ہے۔ اچھا، کعبہ کی بنیاد رکھنے والا کون؟
कुरान बताता है हमें, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना। अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? अल्लाह। वो काबतुल्लाह मक्के में, वो अज़मत वाला, वो बरकत वाला, वो हिदायत वाला मकाम इब्राहीम जिसको खाना काबा कहा जाता है, तो काबा की बुनियाद रखने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला। जिसको परवान चढ़ाने वाला कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिसको आगे बढ़ाने वाला कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो काबा नीचे की तरफ झुके और पीछे आओ तो मकाम इब्राहिम झुके, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए घर आए और घर के अंदर नहीं गए बल्कि बाहर जो बैठने की जगह होती है वहां पर बैठ गए और लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। इतने में बीवी आमना दरवाजा खोलती है और पूछते हैं कि आप इतना परेशान क्यों है, आप इतना हैरान क्यों है, आपको क्या तकलीफ है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सामने देखता हूं तो काबा झुक रहा है, पीछे देखता हूं तो मकाम इब्राहिम झुक रहा है, लेकिन जैसे दरवाजा खोला बीवी आमना ने तो घर में इतनी खुशबू आ रहे हैं। चूंकि दादा अब्दुल मुत्तलिब तो बाहर बैठे थे, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि आमिना, घर में खुशबू कहां से आ रही है? हमारे घर में तो गरीबी है, कई जमाने से खुशबू हमने नहीं खरीद कर लाई है, यह खुशबू कहां से आ रही है? ये मुश्किल की खुशबू, जाफरान की खुशबू, अंबर की खुशबू, ये काफूर की खुशबू कहां से आ रही है? दादा अब्दुल मुत्तलिब तो पहले से घबराए हुए थे कि काबा सामने झुक रहा है, पीछे मकाम इब्राहिम झुक रहा है, अब ये खुशबू कहां से आ रही है? तो बीवी आमना ने कहा कि आप पानी पी लीजिए। जब पानी पिया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि आमना, अब तो बताओ कि हमारे घर में कोई आया नहीं तो फिर ये खुशबू कहां से आ रही है? तो बीवी आमना ने कहा कि जो मेरे पेट में बच्चा था वो थोड़ी देर पहले दुनिया में आ चुका है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो बात कही है वो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है, सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। वो कहते हैं फफ़हिम्तु कुल्ला ज़ालिक, मैं सब कुछ समझ गया। बीवी आमना तो एक औरत थी, वो कहने लगी कि तुम क्या समझ गए हो? दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इतना अजीम है, इतना अजमत वाला है, इतना बरकत वाला है, इतना शान वाला है, इतनी बड़ी मनसब वाला है कि जिसकी शान में आज काबा भी झुक रहा है, जिसकी शान में आज मकाम इब्राहिम भी झुक रहा है। सारी दुनिया खुशबुएं ढूंढती है, लेकिन आज खुशबुएं ढूंढते ढूंढते इस बच्चे के पास आ गई है। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और कहने लगे कि इस काबे के पैदा करने वाले की कसम है कि इस बच्चे की शान काबा से भी ऊंची है, इस बच्चे की शान मकाम इब्राहिम से भी ऊंची है। जन्नत का मुश्क, जन्नत का अंबर, जन्नत का ज़ाफ़रान, जन्नत का काफूर, जन्नत का लूलू, इन सब का मकाम नीचे है और आने वाले बच्चे मुबारक का मकाम इन सब से भी ऊंचा है। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए कि जिसकी शान में काबा झुके वो मेरा पोता है, जिसकी शान में मकाम इब्राहिम झुके मैं उसका दादा हूँ, जिसके लिए आसमान से खुशबुएं आए वो मेरा पोता है। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा खुश हैं। और आप सभी को मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दुनिया से पहले जा चुके थे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बीवी आमना से कि एक काम करो कि इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा, इसलिए कि अब्बा तो है नहीं और मैं इसका दादा हूं, इसलिए मैं बच्चे का नाम रखूंगा। तो बीवी आमना रोने लगी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब समझ गए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि रोने की क्या बात है, एक नाम तुम रख लो, एक नाम मैं रख लूंगा। जब बच्चे की शान इतनी ऊंची है, अगर दो नाम हो गया तो क्या मसला है, एक नाम तेरे तरफ से होगा, एक नाम मेरे तरफ से हो जाएगा। तो बीवी आमना फिर रोने लगी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि अब रोने की इसमें क्या बात है, एक नाम तेरे तरफ से हो गया और एक नाम मेरे तरफ से हो गया। तो बीवी आमना ने कहा कि आपको नाम रखने की जरूरत नहीं है और ना मुझे नाम रखने की जरूरत है। जिस अल्लाह ने पैदा किया उस अल्लाह ने पैदा होते ही आसमान से 7 नाम दे दिए हैं।
कसरतुल उसामी तज़ल्लु अला अज़हमतिल मुसम्मा। उलमा जानते हैं कि जिसके नाम ज्यादा होते हैं उसकी शान भी बहुत ऊंची होती है। तो ये नाम अब्बा ने नहीं रखा था, क्योंकि अब्बा तो दुनिया में थे नहीं। ना बीबी आमना ने रखा, ना दादा ने रखा, ना चाचा ने रखा, ना मक्का वालों ने रखा, बल्कि डायरेक्ट पैदा होते ही अल्लाह नाम देता है। और गोया अल्लाह ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कि ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, इसकी जात भी मुकद्दस होगी, इसका नाम भी मुकद्दस होगा। ऐसे तो हमारे नबी के 99 नाम हैं, जैसे अल्लाह के 99 नाम है, ऐसे हमारे नबी के भी 99 नाम है। लेकिन वो 7 नाम क्या है, हम में से बहुतों को मालूम नहीं होगा, या मालूम होगा, सुना भी होगा, लेकिन उनको बताया नहीं गया होगा। अभी आईपीएल है, आईपीएल क्रिकेट चल रहा है ना, अभी बच्चों को पूछो, हर एक खिलाड़ी का नाम बताएगा, जबकि उसमें नए नए खिलाड़ी भी शामिल है। अगर वो अच्छा खेलेगा तो टीम में शामिल रहेगा, और अगर खराब खेला तो टीम से बाहर भी होगा और उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या रबीउल अव्वल का महीना पहली बार आ रहा है? रबीउल अव्वल का महीना कयामत तक आएगा, और कयामत तक रबीउल अव्वल का महीना चमकता रहेगा, कयामत तक रबीउल अव्वल का महीना उजाला ही उजाला रहेगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, सुनो। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आमिना, नाम तू भी नहीं रखेगी, मैं भी नहीं रखूंगा। तो बीबी आमिना ने कहा कि ना, अल्लाह कहता है कि जिस अल्लाह ने पैदा किया वो अल्लाह कहता है कि जात भी मुकद्दस है, नाम भी मुकद्दस होगा। जब जात और तरबियत अल्लाह की, तो हमारे नबी की हर यानी हमारे नबी की पूरी जिंदगी क्या है, मुअज्जज़ा है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आता कि कुछ लोग रबीउल अव्वल के महीने में अपने घरों में छोटे छोटे लाइट लगाते हैं। उनसे पूछो कि भाई ये क्यों लगाते हो, वो कहेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना है, इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है और इसी महीने में हमारे नबी का जाना भी है। क्या हमारे नबी का आना और हमारे नबी का जाना यही मौजज़ा है, या हमारे नबी का नाम यही मौजज़ा है? बल्कि यूं कहो कि सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक हमारे नबी की जात मौजज़ा है। जब रोजा मुबारक के अंदर गए तो अंदर भी मौजज़ा है, और जब कल कयामत के दिन कब्र मुबारक से उठेंगे तब भी मौजज़ा होगा। कयामत के दिन भी हमारे नबी का मौजज़ा होगा, और जब हम जन्नत में जाएंगे तब भी हमारे नबी का मौजज़ा होगा। इसलिए मेरे मुसलमानों, उजाला करो या ना करो, लेकिन दिल में मोहम्मद की मोहब्बत की बत्ती जला लो, इसलिए कि हमारे नबी की पूरी जिंदगी मौजज़ा है। रब्बे काबा की कसम है, सिर्फ रबीउल अव्वल का महीना मौजज़ा नहीं, बल्कि सारे महीने हमारे नबी पर कुर्बान है। तो वो 7 नाम क्या है? पैदा होते ही जो अल्लाह ने 7 नाम अपने हबीब के लिए भेजा, वो 7 नाम क्या है? इस्मुहु फिस समाई महमूद, वफित तौराती अल मुअय्यिद, वफित ज़बूरी अल हादी, वफिल इंजीली अहमद, वफिल कुरआनी ताहा व यासीन व मोहम्मद। आसमान से आवाज आई कि जात भी मेरी है, नाम भी मेरे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ ये बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। आसमान पर इसका नाम महमूद है, तौरेत में इसका नाम मुअय्यिद है, जिसके माने है, जिसका मतलब है जिसके साथ खुदा की मदद हो। में इसका नाम अल-हादी है, जिसके माने है सीधे रास्ते दिखलाने वाला, और इंजील में इसका नाम अहमद है। और अल्लाह फरमाते हैं कि इस बच्चे की शान ये होगी, जब इस बच्चे की उम्र 40 साल होगा, उस वक्त इसको आसमान से कुरान मिलेगा, और उस कुरान में इस बच्चे का नाम होगा। अल्लाह फरमाते हैं कभी मैं इस बच्चे को ताहा कहकर पुकारूंगा, कभी यासीन कहकर पुकारूंगा, और कभी मोहम्मद के नाम से नवाज दूंगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब अभी बाहर चौखटी पर थे, और दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि आमिना रास्ता तो दो, मैं अपने चांद के टुकड़े को तो देख लूं। अभी चंद कदम घर घुसे ही थे कि अंदर एक लंबा चौड़ा इंसान नजर आया।
दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि तुम कहां से आए हो, दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है, तुम कहां से आए हो? तो आने वाले ने कहा अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं फरिश्तों में का एक फरिश्ता हूं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि तुम्हारा आना भी मुबारक है, इसलिए कि मैं बड़ी अजीब अजीब चीज देख रहा हूं, हमने फरिश्तों को भी देख लिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ने लगे। फरिश्ते ने कहा कि आगे जाने की इजाजत नहीं है। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे क्या मेरा घर है और मैं आगे ना जाऊं? और फरिश्ते कहते हैं आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि इस बच्चे को, मोहम्मद को उस वक्त तक कोई नहीं देख सकता क्योंकि आसमान के फरिश्ते अभी उनके पेशानी को चूम रहे हैं। जब फरिश्ते फारिग हो जाएंगे फिर इंसान को जाने का मौका मिलेगा। अब फरिश्ते आसमान पर कितने हैं किसी को मालूम नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बता सकता कि आसमान पर फरिश्ते कितने हैं। कुरान ने हमें बताया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई फरिश्तों की तादाद, फरिश्तों की गिनती नहीं बता सकता। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए। अब ये जन्नत की खुशबू जो थी ये तो एक जगह रुकने वाली नहीं थी, पूरे मक्के में फैल गई। पूरे मक्के के लोग दौड़े आ रहे हैं कि खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। मर्द और औरत सब दौड़े हुए आ रहे हैं। जब हमारे नबी की फूफी हजरत सफिया को पता चला, वो भी दौड़ते हुए आ रही है और आमना से मुलाकात करती है और पूछती है कि आमना क्या मामला है? पूरे मक्का में शोर शराबा है, पूरे मक्का में शोर गुल मचा हुआ है कि खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, आखिर मामला क्या है? बीबी आमना कहती है कि जो बच्चा मेरे पेट में था वो बच्चा थोड़ी देर पहले इस दुनिया में आ चुका है। जैसे ही दुनिया में आए अल्लाह ने 7 नाम भेज दिए, काबा झुकने लगा, मकाम इब्राहिम झुकने लगा और जन्नत से खुशबुएं भी आने लगी। तो हजरत सफिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है, फिर वो सीधे हमारे नबी के पास जो अभी पैदा हुए वहां पहुंच गए। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं? नहलाते हैं बच्चे को। बीवी हजरत सफिया ने जो अल्लाह के नबी की फूफी है वो इस तरह गोद में उठाई और कहती है कि इस बच्चे को नहलाने का काम मैं करूंगी। फौरन गैब से आवाज आती है कि सफिया रहने दे, हमने इस बच्चे को जन्नत के पानी से गुसल देकर भेजा है। तो मेरे मुसलमानों ये रबीउल अव्वल का महीना है, अगर अब भी हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमने मोबाइल को कितना टाइम दिया? रब्बे काबा की कसम कहता हूं जितना टाइम मैंने मोबाइल को दिया, अगर इतना टाइम हमने नबी के बारे में कुछ पढ़ लिया होता, नबी के बारे में कभी हमने सोचा, मदीने के बारे में कभी हमने सोचा, हमारे जो अकाबिरीन थे वो मदीने से कितनी मोहब्बतें करते थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके पास कोई आए मदीने की खजूर लेकर, हमारे पास भी खजूर और पानी आते हैं, हम क्या करते हैं? खा लिए पी लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पास एक शख्स आया और कहता है कि हजरत मैं उम्रा करके आया हूँ, मदीने से खजूर लेकर आया हूँ, तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उस खजूर को यूं पकड़ा और खाया नहीं, बल्कि प्यार से कहता है कि ये मेरे नबी की शहर की खजूर है, ये मेरे नबी की शहर की खजूर है। कभी पेशानी पे लगाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी होंठ पे रखते हैं, कभी चेहरे पे रखते हैं, कभी आंख पे रखते हैं और प्यार से कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये मेरे नबी की शहर की खजूर है, ये मेरी नबी की शहर की खजूर है। इतने में किसी ने आके कहा कि हजरत ये खजूर मदीने से तो आए हैं, लेकिन खजूर का जो शक्ल है ये यमन का है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने क्या कहा कि ये खजूर कहीं भी पैदा हुई हो, लेकिन इस खजूर में मदीने की हवा तो लगी है। और उस खजूर को देखकर इतना रोए मेरे मुसलमानों, वो मदीने के खजूर से इतनी मोहब्बतें करते थे। और आज हम नबी की नमाज से मोहब्बत नहीं करते हैं, आज हम नबी के हुलिये से हमें मोहब्बत नहीं है, नबी के चेहरे से हमें मोहब्बत नहीं है। तो मैं यही कहूंगा भाई आप लोग भी दाढ़ी रख लो। ये जो दाएं बाएं हम कटिंग करते हैं दाढ़ी की, ये नबी की शक्ल नहीं है, यह किसी अंग्रेज की, यहूदियों की, ईसाई की तो शक्ल हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की ये शक्ल नहीं हो सकती है। इसलिए कि मोहब्बत की शुरुआत कहां से होती है? चेहरा से। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत कहां से होती है? चेहरे से। अगर आप कहीं शादी करेंगे
تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لو، ورنہ تو عام حالت میں غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا شریعت نے بالکل حرام قرار دیا۔ لیکن جب نیت اچھی ہو، نکاح کرنے کا ارادہ ہو، شادی کرنے کا ارادہ ہو، تو اللہ کہتا ہے جس چیز کو میں نے حرام کر دیا تھا، نیت اچھی ہے، شادی کرنے کا ارادہ ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے میں حلال کر دیتا ہوں، اس لڑکی کو دیکھ لو۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ محبت کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے، اور ہمارا چہرہ کیا ہے؟ اچھا آپ بتاؤ، ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، تمام صحابہ کرام کے چہرے پر داڑھی تھی، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کے چہرے پر داڑھی تھی، ہے اور رہیں گے، تو پھر ہمارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں؟ جب نبی سے ہمیں عشق کرنا ہے، جب ہم نبی کے عاشق ہیں، تو نبی کی ایک ایک چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں اس پر آ رہا ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، نماز کی پابندی کرے۔ نماز چھوڑنا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ لوگ فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، 8 بجے 10 بجے 7 بجے سو کر اٹھتے ہیں، رات لیٹ سے سوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث پاک میں لکھا ہے ایک شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، مان لو اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایک شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اچانک صبح آنکھ کھلتی ہے کہ اللہ اللہ میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، گھر والوں کو آواز دیتے ہیں کہ آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، موبائل کو جا کر دیکھتے ہیں، میں نے الارم لگایا تھا، وہ الارم بجا کہ نہیں بجا، وہ حیران ہے، پریشان ہے، دل تڑپ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کی ایک فجر چھوٹی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، فرشتوں جاؤ ان کے نامہ اعمال میں 100 فجر لکھ دو۔ اس لیے کہ اللہ کو تڑپنے والا دل پسند ہے، اللہ کو تڑپنے والا دل نہ ہے، اس لیے کہ اللہ تڑپنے والے دل کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ایسا دل جو تڑپنے والا ہو، اللہ آسمان پر قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے فرشتے جاؤ ان کے نامہ اعمال میں 100 فجر لکھ دو، ایک فجر گئی ہے 100 فجر لکھ دو ان کے نامہ اعمال میں۔ جس کے دل تڑپنے لگے نماز چھوٹنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک فجر کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 100 فجر کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو فجر پڑھتا ہی نہیں، جس کا معمول ہے 8 بجے 10 بجے سو کر اٹھنے کا، ان سے کہو بھائی فجر کی نماز، تو کیا کہتا ہے فجر کی نماز میں کہاں پڑھتا ہوں، سو کے اٹھتا ہوں 8 بجے 10 بجے، میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی اس نے فجر کی نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس نے نماز کو ایسا ہی سمجھا جیسے بدن پر مکھی بیٹھی ہو، پھر اس کو یوں ہی اڑا دے۔ اگر کسی نے نماز کو ایسا ہی سمجھا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو نماز کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، جو نماز کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا، جو نماز کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، میرے نبی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگی۔